Friends, we all know that how big chapter is aldehyde ketones and carboxylic acid. So today we are going to cover in one shot with the short notes. So let's start. So this we will for this chapter we will divide this chapter into three sections, which are aldehydes and ketones. Then we will discuss about carboxylic acids. So if we discuss about carboxylic acids, then the formula, let's start with the very basic thing. Carboxylic acid formula is RC double bond OH. Ester formula is ROR. No. Acid anhydride contains only one O. Then, if we talk about ester and carboxylic acids are each other's functional isomers. How? Because ester is the only one जिसमें दो O आता है. एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में दो O आता है और ईस्टर में दो O आता है. टॉकिंग अबाउट एसिड एनहाइड्राइड में दो C डबल बॉन्ड O आते हैं. ठीक है. एसिड अमीन, यू नीड टू रिमेंबर दिस कि किसी में आ गया नॉमेनक्लेचर में, तो इनके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए. एसिड अमीन्स आर RC डबल बॉन्ड O NH2. एसिड हेलाइड्स RC double bond O X. So this structure is called phenone or acetophenone. Now note it. You must note if CHO is secondary figure, then its name is oxo. Okay. If carbon is not counted, then its name is formyl. Many students get confused in what is oxo, what is formyl. So oxo comes when it's in between, okay, and formyl comes when it is not counted, then it's called formyl. When carbon of is not counted, then it's called formyl, okay, and it's is called oxo when it is counted, okay. Carboxylic acids gets priority over all functional group. Carboxylic acid सबका बाप होता है, ठीक है, okay. So method of preparation, let's come to the method of preparation. First and foremost topic of the chapter is method of preparation of aldehyde and ketone, how we will make. And aldehydes and ketones are collectively called as carbonyl compounds. You must remember this. So method of preparation is, first method is by oxidation of alcohol. Oxidation of primary and secondary alcohol, you get your oxidation of alcohol से मिल जाता है मुझे क्या, carbonyl compounds. Then by dehydration of alcohols, alcohol vapor are passed every catalyst Ag और Cu. So primary alcohol से के डिहाइड्रेशन से मुझे एल्डिहाइड मिल जाएगा, सेकेंडरी से केटोन, और थर्ड 3 डिग्री अल्कोहल से मुझे एल्कीन मिल जाता है. यू मस्ट रिमेंबर दिस. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन विल बी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. अब हाइड्रोकार्बन से कैसे बनता है? फर्स्ट प्रिपरेशन वुड बी बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन. ओजोनोलिसिस मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास C डबल बॉन्ड है, इसको मैं तोड़ देती हूँ और यहाँ पे O आ जाएगा एक तरफ, मतलब डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद एक के पास O इधर आ गया, एक के पास O इधर आ गया, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड. देन हाइड्रोकार्बन से सेकेंड मेथड क्या होता है? बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एडिशन ऑफ वाटर से भी मिल जाता है, ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. सो कुछ नेम रिएक्शंस होते हैं. स्टार्ट रोजनमुंड रिएक्शन. सो द ट्रिक टू लर्न इज़ वेरी फनी. रोजनमुंड में क्या होता है? First thing you need to remember is H2PDBAS4 is known as Lindlar's catalyst. Okay, this can come in MCQ. What are Lindlar's catalysts? As it's अगर क्वेश्चन आ गए तो remember. Okay, so रोजनमुंड में आपको बेसिकली याद रखना है, okay, that acid halide like RC double bond OCl, acid halide और acid chloride, okay, we take it, okay. तो ये मोटा बच्चा होता है, ओके. क्या होता है? ये मोटा बच्चा होता है. इसको हम लोग क्या करते हैं? इससे कर H2PDBASO4, ओके. सो वी स्मेल रोज एंड इट बिकम्स what? It becomes aldehyde. So this is all about Rosenmund reaction. I hope you remember this. Reagents are H2PDBASO4. Also we can take S8 quinoline or by boiling xylene. Now you need to do these questions. You can do it. Benzoic acid to benzaldehyde.
एंड ये आप करके देख सकते हो, इससे रोजनमुंड से हो जाएगा आराम से। वी डिड व्हाट, वी डिड सबसे बेस्ट मेथड जो होता है हेलोजनेशन का SOCl2 डाल के, ये मैंने क्या बना दिया, एसिड क्लोराइड, बेंजीन, वो एसिटॉइल क्लोराइड कुछ ऐसे करके बोलते थे ना, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OCl, देन मैंने रोजनमुंड रिएक्शन करवा दिया और यहाँ पे मुझे बेंजल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको कन्वर्जन के, आप कन्वर्ट करके देख लेना। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज स्टीफेंस रिएक्शन। ये स्टीफेन बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफेन, सो सेंट स्टीफेन उसी के नाम पे रिएक्शन है, सेकेंड जो रिएक्शन है ओके इस चैप्टर का। सो आपको कैसे याद रखना है, सेंट स्टीफेन ओके। तो इसमें क्या होता है, नाइट्राइल से होता है, इसमें हम लोग साइनाइड या नाइट्राइल ले लेते हैं एंड वी टेक एज अ रिएजेंट H2 और SnCl2 एट -78 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा होता है। 195 केल्विन आ गया ना तो कंफ्यूज मत हो जाना, -78 डिग्री सेल्सियस और 195 केल्विन, इट मेक्स आईमीन से फिर हम लोग आईमीन के अंदर, आईमीन स्ट्रक्चर को आईमीन बोलते हैं, इसे भी रिमेंबर करना है आपको। इसके अंदर हम लोग वाटर डाल देते हैं, सो एल्डिहाइड बन जाता है और अमोनियम का गैस निकल जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ दिस रिएक्शन, द थिंग इज दैट द यील्ड इज ऑफ एल्डिहाइड इज़ नॉट नोन, बहुत कम यील्ड होता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, टॉल्यून को रिएक्ट कराऊंगी CrO3, जोन्स रिएजेंट भी होता है, उसको भी आपको रिमेंबर करना है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट एंड देन वी गेट अ बेंजल्डिहाइड। व्हाट इज साइड चेन हेलोजनेशन? टॉल्यून के अंदर अगर हम लोग हेलोजनेशन करवा देते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन के ऊपर CH2Cl. So this becomes, I hope you are concentrating, right? Okay, so if you are removing water from this, then it becomes benzaldehyde. Now let's come to the next named reaction of the chapter, which is Gutterman-Koch reaction. Gutterman-Koch में क्या होता है, एक तो Gutterman reaction था, Gutterman में तो वो जो सैंडमेयर का उल्टा था वो तो गया, बट यहाँ पे Gutterman-Koch है। Gutterman-Koch में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CO प्लस HCl डाल देते हैं ओके, तो मेरा क्या बन के आ जाता है, बेंजल्डिहाइड बन के आ जाता है ओके ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स कम टू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड ऑफ एनी प्रेपरेशन कम्स एसिड हैलाइड से, एसिड हैलाइड से बन जाएगा। ठीक है, सो एसिड हैलाइड्स ऑन रिएक्टिंग विद डाई एल्काइल केडियम R2CD ओके, इट्स फॉर्म इन द C2 ऑफ, ये भी याद रखना है आपको, R2CD जिस इज डाइअल्काइल केडियम कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म इन द C2 ऑफ CdCl2 विद ग्रिग्नार्ड रीजन। अब आप बोलोगे C2 क्या होता है, C2 बेटा जो आपको रिएक्शन में यूज़ नहीं होता बट वो पहले ही बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं C2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स कम टू आगे ओके। एसिड हैलाइड से कैसे बनता है ये आपको दिख रहा होगा आई होप। फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन जल्दी से देख लो आप। अच्छा, मेरे को क्या लग रहा है ना कि मैं जल्दी नोट्स दिखा देती हूँ फिर पढ़ाऊँगी, बिकॉज आप ना देख लेना, ठीक है। तो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन जल्दी से देख लो। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन की बात हो रही है तो एसिटाइल यूज़ करेंगे, एसिटाइल क्लोराइड यूज़ करा मैंने इसलिए। फिर यहाँ पे मेरा जो ये HCl बन गया और यहाँ पे जो मेरा RC डबल बॉन्ड था वो बेंजीन के साथ आ गया और मेरा कीटोन बन के आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में डाइबल H। डाइबल H इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका स्टीफेंस रिडक्शन में यूज़ होता है। डाइबल H को डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है इसका फुल फॉर्म ओके। इसमें यील्ड आपकी ज़्यादा होती है, उस वाले स्टीफेन वाले में तो ज़्यादा नहीं थी, स्टीफेन रिडक्शन करा दिया मैंने डाइबल H के साथ। तो डाइबल H में डाइबल H कैन नॉट बी रिड्यूस इनटू ट्रिपल बॉन्ड इनटू डबल बॉन्ड बट नॉट डबल बॉन्ड इनटू सिंगल बॉन्ड। मतलब ये ट्रिपल को, जैसे यहाँ पे ट्रिपल था नाइट्राइल का, उसको इसने डबल बॉन्ड में चेंज करा बट डबल से ये सिंगल में चेंज नहीं कर सकता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स कम टू फ्रॉम टॉल्यून। अब टॉल्यून है, टॉल्यून दादाजी हैं, तो इटार्ड रिएक्शन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन द चैप्टर इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड में क्या होता है, इटार्ड आपको कैसे याद रखना है कि ताऊजी होते हैं, ताऊजी, टॉल्यून उसको क्या बोला जाता है, टॉल्यून। तो वो जा रहे होते हैं अपना कुछ गलत काम करने, ठीक है, मतलब ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोमाइड क्लोराइड टेस्ट भी आ जाता है आपके प्रैक्टिकल्स में, विच इज़ ऑरेंज कलर टेस्ट, ठीक है, ऑरेंज कलर फॉर्म होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। बट इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टॉल्यून टाउ दादाजी होते हैं, तो वो गलत काम जा रहे होते हैं करने, तो उनको बोल जाते हैं रिटार्ड करो, ताऊ जी को रिटार्ड करो, तो उससे आप याद रखोगे इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन होता है, क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ हो जाता है CS2, और फिर उसके बाद हमारा बन के आ जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बन के आ जाता है, बेंजल्डिहाइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, क्रोमाइल क्लोराइड। इसका टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी जो यूज़ होता है, तो इससे मेरा बन के आ जाता है क्या, बेंजल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू द बॉइलिंग पॉइंट। इफ़ वी टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर ऑफ बात करें हम लोग, सो कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमेशा ज़्यादा ही रहता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर अल्कोहल का, फिर कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर ईथर का, फिर हाइड्रोकार्बन का। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, एल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ओके, नाउ डाइबल एच के बारे में मैंने बात कर दिया। ईस्टर के अंदर डाइबल एच डाल देती हूँ -78 डिग्री सेल्सियस में, तो मेरे पास क्या बन के आ जाता है, कीटोन बन के आ जाता है। केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं हमने, फिजिकल रिएक्शन की तो बात कर ली। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें जिसमें SN1 SN2 यूज़ होता था। सो अब हम लोग बात करते हैं, जब इसमें न्यूक्लियोफिलिक की बात करेंगे तो SN2 में एक स्टेप में हो जाता था, राइट है, कोई कार्बोकटाइन नहीं फॉर्म होता था, और यहाँ पे ये फास्ट स्टेप में हो जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब मैंने कहा कि एल्डिहाइड्स, ये आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है कि एल्डिहाइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर देन कीटोन होता है, बट एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, नाउ वाई, ऐसा क्यों होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, कीटोन्स आर स्टेरिकली हिंड्रल्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 बल्की ग्रुप्स ऑन द बोथ ऑफ द साइड ऑफ कार्बन। बीच में कैसी डबल बॉन्ड हो चल रहा है, साइड में 2 बल्की ग्रुप है, राइट है, तो वो क्या होता है, स्टेरिकली हिंड्रल्ड होता है। नेक्स्ट रीजन होगा लो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। Okay, I hope you understood. Due to plus I effect, aldehyde have only electron donating. Now let's talk about some chemical reactions of carbonyl compounds. Now reaction with HCN. Reaction with HCN में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ रहे हैं, ये सायानोहाइड्रिन, ये सब जितने भी रिएक्शंस हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स में भी आप देखोगे आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिएक्शन विथ HCN देखोगे तो आप यहाँ पे कीटोन के अंदर आप लोग HCN डाल देते हैं तो सायानोहाइड्रिन कंपाउंड बन जाता है। दिस रिएक्शन इज़ यूज टू इंक्रीज 1 कार्बन एटम। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ये क्या करता है, 1 कार्बन एटम को इंक्रीज करता है। द रिएक्शन विद प्योर HCN इज़ वेरी स्लो, हेंस इट इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर बेस लाइक NaOH, हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइड। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूँ, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHCO3, और इसको बाइसल्फाइड भी कहते हैं, याद रखना, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइड ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। जहाँ पे मुझे वर्ड दिख गया हाइड्रोजन तो बाइसल्फाइड बन जाता है। कीटोन के अंदर NaHCO3 में डाल दूँगी मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सोडियम सल्फाइड का प्रोडक्ट मिल जाएगा। द इक्विलिब्रियम लाइज मोर टूवर्ड्स राइट फॉर एल्डिहाइड एंड इक्विलिब्रियम मोर टूवर्ड्स लेफ्ट फॉर कीटोन, राइट फॉर एल्डिहाइड, लेफ्ट फॉर कीटोन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है, अभी मैंने बताया था। तो इस तरीके का कुछ रिएक्शंस है, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ पिक्चर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ़ यू वांट टू टेक। देन ग्रिंगनार्ड रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर केमिस्ट्री। ग्रिंगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMGS, और कहीं पे भी आपको ग्रिंगनार्ड रिएजेंट RMGX निकल गया, दिख गया, तो आपको याद रखना है कि MgOHX पक्का प्रोडक्ट होगा, और MgOHX निकल गया, बाकी जो बचा ओ माय गॉड X आ गया, तो यहाँ पे जो बाकी जो बचा वो प्रोडक्ट बन जाता है। दीज आर द ट्रिक्स फॉर ग्रिंगनार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ अल्कोहल की बात करूँ मैं, अल्कोहल में आप क्या करते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ROH ड्राई HCl गैस ले लेते हो, तो यहाँ पे हेमी एसिटल बनता है। हेमी एसिटल किसको बोलते हैं, अभी ये हेमी एसिटल बोलते हैं हम लोग, जिसमें OH रहता है एक तरफ और एक तरफ OR रहता है, राइट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेमी एसिटल। यहाँ पे ड्राई ROH या फिर HCl गैस ले लेते हैं, तो यहाँ पे डाई एल्कोक्सी डेरिवेटिव एसिटल किसको बोला मैंने, OH निकल गया यहाँ से, OR आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटल, और यहाँ पे पानी बाहर निकल गया, ठीक है। आप मेरे नोट्स में ज़्यादा गौर करके देखो, मेरे पास अभी टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ। HCl प्रोटोनेट्स